We are initiating. Under the heading of probability, we have different subheadings. And now we are moving towards combinatorial analysis. Combinatorial analysis is basically a counting technique. Combinatorial analysis comprised upon 3 segments, out of which the one is the basic principle of counting. The second one is known as permutation. Third one is the distinguishable permutation. The next one is the combination. It means combinatorial analysis is based on 4 different segments, out of which the basic principle of counting is the product rule. We use the term simply for this as product rule. What the product rule is, just to multiply the event. And all of you are already familiar with the permutation and combination. So we will have to do the different exercises for permutation, combination, and the basic principle. And all of you should be attentive, because whenever I am solving the question or any problem, I will give you a chance to solve that. Okay? So your attention is very important. If you are not attentive, then you miss lot of questions. So because in this chapter, the problems are not too lengthy. Most of the problem will be solved in either 1 line or 2 line. So you have to just analyze the problem and then try to solve that and finally give the answer. That is basically the strategy in the chapter of combinatorial analysis. In the next chapter, laws of probability, and the random variable and the discrete probability distribution. Okay, we will not discuss this and this in this course. These 2 topics will be discussed in the next semester under the heading of inference. The inference is the topic where these 2 chapters or topics will be considered. Okay, moving next, counting rule or product rule. Another name of counting rule is what? Is the product rule, named as product rule. Okay, let me check my speaker. आपको आवाज़ अगर कम आ रही है तो मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है ऐसी. Microphone is connected with the USB. Speaker is connected as the USB. I think so. The devices are correct. मैं थोड़ा सा लाउड बोल लेता हूँ क्योंकि devices तो सही हैं. So counting rule is basically the product rule. Product rule is what?
Suppose that our actions are to be performed in a definite order, means the order is important. Further, suppose that M1 possibilities for the first action. Okay, suppose a coin is tossed, then a die is rolled. A coin is tossed, then a die is rolled. So how many possibilities do you have if a coin is tossed? Head, tail, 2 possibilities. And then how many possibilities do you have when a die is rolled? 6 possibilities. 1, 2, 3, 4, 5. So M1 is what? In this case, experiment comprised on 2 events, in which the first comprised on a tossing of a coin, and later on it is comprised on rolling a die. So here are basically the 2 events. The first event can be performed by 2 ways, and the second can be performed by 6 ways. The total number of ways will be what? 2 multiplied by 6 is the 12 ways. So in this experiment, entire experiment is comprised on 2 consecutive events, which are referred to as actions, 2 actions. In this definition, these are the 2 actions. In first action, what we are doing? We are tossing a coin. In second action, what we are doing? We are rolling a die. So these are the 2 actions in this experiment. And this is the first action, and this will be done after the first one. Means definite order. The order is what? This is first, this is second. So total ways can be simply computed by the product rule. Product rule is saying what? The first action can be done by 2 ways. The second action can be done by 6 ways. So the total ways will be 12. If someone is interested to list down these 12 ways, it is quite easy. These are the 12 ways, which is just we have counted. And if we are interested to put the list of these 12 events, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. These are 6. And we may have again tail 1, tail 2. Then we have tail 3. We have tail 4. Tail 5. And tail 6. These are the 12 possibilities. You have just counted is by
just counted it by m1 multiply by, formula is what? m1 multiply by m2. m1 is 2. Why m1 is 2? Because had comprised on 2 possibilities. Multiply by 6. Why 6? Because die can be rolled by 6 ways. The total are 12. And list comprised on these 12 ways. So this is a very simple example. In this simple example, there are the 2 actions. So according to this definition, R is 2, as we have 2 actions. First action is drawing, tossing a coin. And the second action is rolling a die. These are the 2 actions. The both actions are in definite order. Order is important. This is done first. This is done second. Further that, suppose there are the m1 possibilities for the first action. First action आप कितनी बार कर सकते हैं? First action, you can do the first action by 2 ways. That corresponding to the each of these possibilities, there are m2 ways for the second action. Second action ये कितने हैं? 6 हैं. तो total कितने हो गए? 12 हो गए. Now the list can be verified. These are the 12. Okay. If anyone have any confusion in this solution, you can raise your hand. If anyone have any confusion in this solution or in this definition, you can raise your hand. No one. Okay. Now moving to the next slide. This is the question. You have to solve it yourself by looking at this definition. इस definition को देखिए और जो अभी आपने समझा है, according to that, try to solve this problem. All of you. Then I will give you the chance कि आप में से कोई एक इसको यहाँ solve करेगा और आप ready रहिए क्योंकि मैं इसको record करूँगा. जी, question को पढ़ लीजिए. जी, क्वेश्चन कर लूं. जी, my question is to Al-Rafa Mahin. जी, Al-Rafa. Sir, I think the answer is 343. Can you tell me the number of steps? Which multiplied by which? G. By taken the cube of 7. Cube of 7, 3-digit numbers. I think so your answer is correct. Because
sequence of events. How many sequence of events? In this case we have 3 because we have 3 digits. तो जो डेफिनेशन में एक टर्म यूज हुई थी वो ये थी एक्शन, आर एक्शंस. So here the R actions are 3 actions. First action, second action, third action. Acha, now how many ways we can do the first action? Okay, by how many ways we can do the first action? What is the possibility of the first action? We have 7 digits. These 7 digits we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the 7 digits. And we are forming numbers. The digits are joined to form numbers. So on the leftmost place, we have any one of these 7 digits. So it can be filled by 7 ways, the first action. Now, what about the second action? It is again 7 ways because we have repeated in part A. In part A, we have repeated means we have 7 actions, again we have 7 actions, and again we have 7 actions. So it is 7 raised to the power 3. Whatever the answer of 7 raised to the power 3 you have is basically the answer of this. अगर ये 343 आ रहा है तो वो भी सही है, और अगर ये 210 आ रहा है तो वो सही है. दोनों में से कोई एक सही है. ठीक है, ये चेक कर लीजिए 210 आ रहा है या 343 आ रहा है, क्योंकि जो अल-रफ़ा मोइन ने आंसर दिया था वो प्रोसीजर तो सही है, 7 रेस्ट टू द पावर 3. अब इसका आंसर आप चेक करिए 7 रेस्ट टू द पावर 3 का क्या आ रहा है. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? अलिशबा रोज जी. सर मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, ना फर्स्ट पार्ट आया. ओके, आप प्लीज उसे रिपीट कर दें. ओके. देखिए, हाउ मेनी वेज 3-digit numbers are possible from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 digits. Digits are joined to form the number. Number में और digit में फर्क क्या है? जैसे मैं कहता हूँ 23, तो 23 एक नंबर है. 23 में 2 digits हैं, एक पहला digit है, ये दूसरा digit है. ठीक है. तो your question comprised on three ways, 3 actions. First action, you have to arrange a digit on the left place. Second action, you have to arrange another digit here. The third action, you have to arrange a third digit here. When you arrange these 3 digits, a number will be found, a 3-digit number. Suppose 235. Suppose 235 is the number. This number is comprised on 3 digits. In part A, repetition is allowed. Repetition is allowed means what? We have 7 options to fill this place. Again, we have 7 actions because we can repeat. Whatever the number digits we have on the left place can appear again. Whatever the digit we have on the second place can appear again. So that is basically the case of with replacement or repetition allowed. If repetition is not allowed, then we have initially 7 digits. These 7 digits. 1 digit out of these 7 appear here. So again, we have 6 digits remaining. And finally, we have 5 digits remaining. The answer is 210. तो ये जो इस आंसर दिया था इकराम ने, ये सही था. इकराम ही नाम है ना. तो ये आंसर सही था कि इसको 7 into 6 into 5, 7 into 7 into 7, ये इसका पार्ट A का आंसर है.
And this is the answer of part B, and solution and answer of part B. If someone is interested to form the list, if someone is interested to form the list, तो देखिए लिस्ट कैसे फॉर्म होगी, लिस्ट यूं फॉर्म होगी, पहला डिजिट आ गया 1, दूसरा भी आ गया 1, तीसरा भी आ गया 1, 1 1 1, बिकॉज ये 1 है, ये यहाँ आ गया 1, अगेन 1 यहाँ आ गया, अगेन 1 यहाँ आ गया, तो पहला डिजिट बनेगा इन 7 रेज़ टू द पावर 3 में से, जिसका आंसर इन्होंने मुझे बताया कि 343 आ रहा है। अगर ये सही आ रहा है 343 7 के क्यूब का, तो इन 343 नंबर्स में से द फर्स्ट नंबर विल बी 111, द सेकंड नंबर विल बी 112, और इस तरह से ये चलता रहेगा, और फिर ये आएगा 117, लेकिन 118 नहीं आ सकता, बिकॉज आई डू नॉट हैव 8 हियर इन दिस लिस्ट। जब ये 1 के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये बनेगा 1 2 1, फिर बनेगा 1 2 2, और ये 1 2 से चलते जाएगा, और फिर ये बनेगा 1 2 7। इस तरह से ये लिस्ट आगे ग्रो करती चली जाएगी, और फाइनली इस लिस्ट में 7 रेज़ टू द पावर 3 टोटल नंबर्स फॉर्म हो चुके होंगे। ओके, लेकिन whenever we are doing the second part, list will be shortened. How? List is shortened as numbers cannot be repeated. ये मैं इसकी बना रहा हूँ, B part की, ये A part की है list, ये B part की list बना रहा हूँ। If we are starting by 1, the 1 cannot appear again. We may have 2 here. If 2 is appeared here, 2 cannot be repeated. We may have 3. The 1 2 3 is the smallest number of our part B. Then 1 2 4. Or in this list, the last digit will be 7 6 5. That is the maximum number. And how many these are? 1 2, and this is 210. So in this list, I have 210 numbers, while in this list, I have 347 numbers. So that is basically the solution of this question. Now moving next. Okay, now try to solve this. If anyone can solve it, just raise your hand. Otherwise, I will give you the chance कि आप कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा। जी, raise your hand please. Do not give answer. Just raise your hand. I will open your mic and you have to explain it. जी हरीम फातिमा, हरीम आंसर दीजिए, मैंने माइक खोल दिया है। ओके,
आपने आंसर दे दें फिर यहाँ पे चैट में आंसर दे दें 7 into 6 into 5 into 4 okay I will check it हरीम फातिमा आप बता दें चलें हाँ ठीक है इसको चेक करते हैं देखिए now in this case we have 4 actions because we need to form 4 digits the 4 actions are what first action second third fourth by how many ways we do the first action first action is what you have to place a digit here this is your first action how many total digits we have 7 total digits 0 1 2 3 4 5 6 from 0 to 6 we have 7 digits but if we started if we started by 0 on the left place the number will not be the number of 4 digits suppose someone is saying you have the amount of 0 to 3 so in math it is not 0 to 3 it is 2 3 because leading zeros does not play any role in forming numbers leading zero are eliminated by automatically by calculation so it is not 3-digit number it is 2-digit number so if you are interested to form 4-digit numbers 0 cannot appear here so you have 6 options to fill this place 6 any one of the 6 digit can be appeared here then you have again 6 options why because digits cannot be repeated this is mentioned in the problem that you cannot repeat the digit so if digit cannot be repeated so out of the 6 digit 1 to 6 1 came on the first place so I have remaining 5 digits but I can place 0 here so that is why again I have 6 digits then 2 digits are used we have only 5 remaining and 3 digits are used so I have 4 remaining Harim, the reason is 0 cannot be used here. Why? The reason is this. 0 to 3 is not 3-digit number. 0 to 3 is a 2-digit number. So you cannot place 0 here. अगर आपने यहाँ 0 लगा दिया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा ये फिर 3 डिजिट्स का नंबर बन जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हमने 0 को छोड़ दिया एनी वन ऑफ दी 6 डिजिट ये जो 6 हैं इन 6 में से कोई एक यहाँ आ सकता है तो दैट इज व्हाई आई प्लेस 6 देयर अच्छा अब आउट ऑफ दीज 6 1 अपीयर्ड हियर तो रिमेनिंग्स आर 5 अब इनमें से 5 बचे लेकिन आई कैन प्ले 0 हियर एज वेल तो जो 0 मैंने यहाँ रोका हुआ था अब मैं 0 यहाँ लगा सकता हूँ तो दैट इज व्हाई अगेन वी हैव 6 हियर नाउ आउट ऑफ these 7 2 are used out of these 7 2 are used then we have 5 remaining then we have 4 remaining and total will be what by this product rule जी total बताइए क्या आ रहा है अच्छा अभी लाइट आ गई है हो सकता है स्विचिंग हो तो प्रॉब्लम में परेशान नहीं होइएगा अच्छा तो व्हाट आई एम सेइंग टोटल कितना होगा ये 6 into 6 into
5 into 4, ये टोटल होगा 720. 720 is the total. Okay, is this clear to all of you? Or anyone have any query or the problem in this solution? Okay. We can continue as number instead of 0. जी कनेक्ट हो गया दोबारा. ठीक है सर, ये 6 क्यों रिपीट हुआ है? बेटा बताया तो है आपको, ये 6 रिपीट क्यों हुआ है. पहले इन 7 में से 0 हटा लिया था तो 6 हो गए थे. अच्छा, अब 0 मिला लिया तो कितने हो गए? 7 हो गए. लेकिन 7 इसलिए नहीं हुए कि एक यहाँ जा चुका है. जो एक जा चुका है वो कम हो गया और 0 इसमें इंक्लूड हो गया, तो लिहाजा दोबारा 6 हो गए ये फिर हमारे पास. लेकिन अब यहाँ 6 क्यों नहीं हुए? क्योंकि अब 2 जा चुके हैं, 0 भी जा चुका है और एक और जा चुका है, तो अब यहाँ पे 5 रह गए. फिर 3 जा चुके हैं 7 में से, तो 4 रह गए. इस तरह से ये होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर मैं इसी क्वेश्चन को if I am doing by with replacement, okay, if I am doing the same questions by with replacement, then anyone can answer. Yani I am just relaxing one condition, and that condition is if each digit is used only once. If I cut this line, then meaning is we can repeat the digits. If you can repeat the digit, then how many the total is? Raise your hand, please. जी अरीम, जी आंसर दीजिए. 6 into 7 into 7. Yes, you are correct. Why 6 into 7 into 7? Because these are the 4 places, and initially I have 7 digits, but 0 cannot be used here. So I have 6 possibilities to fill this place. We have 6 possibilities to fill this place. कोई पापा चाह रहे हैं.
there is one restriction, and that restriction is 0 cannot appear here. So if I remove 0 from the list, so I have 6 options. 0 is included in the second place, and the digit that comes on the left place is again be repeated. So you have 7 options, we have 7 options, we have 7 options, 7 options all over there, but only the 6 on the left place. Okay. Now try to solve this question. All of you should read the question carefully, then I will give you the chance to solve it. Waqar Ali has to solve part A. Ji Waqar Ali. Waqar Ali, I am asking you, you have to answer. एक्चुअली सर वो जो पिछले क्वेश्चन आपने समझाए थे वो तो मुझे आ गए, लेकिन सर ये जो है मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा. ओके देखिए इसमें we have instead of digits we have letters. ठीक है, Yes, sir. वहाँ हमें digits दिए हुए थे 0 1 2 6 तक, तो इसलिए हमें वहाँ 7 digits दिए हुए थे. लेकिन अब हमें 7 digits नहीं दिए हुए, अब हमें लेटर्स दिए हुए. कितने लेटर दिए हुए? A R T I C L E. कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7. तो अब हमें 7 लेटर्स दिए हुए, इन्हें यूज करना है हमें. वहाँ हमें डिजिट्स को यूज करना था, अब हमें लेटर्स को यूज करना है. अच्छा, हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी? परमुटेशन मींस यही टोटल वेज. लफ्ज परमुटेशन आपके लिए शायद नया हो, लेकिन लफ्ज परमुटेशन का मतलब है ये टोटल पॉसिबिलिटीज. ठीक है, वही टोटल पॉसिबिलिटीज वी आर गोइंग टू काउंट. ओके सर. अच्छा, अब प्लेसेस कितनी हैं? 7. और लेटर्स कितने हैं? वो भी 7. तो 7 places 7 letters. 5 6 7. 7 places and 7 letters. So any one letter can appear here. If out of these 7 letters one appeared here, so remaining 6 letters I have, 5 letters I have, 4 letters I have, 3 letters I have, 2 letters I have, 1 letter. जैसे वहाँ डिजिट्स का हो रहा था ना, एक एक कम हो रहा था विदाउट रिपीटेशन में, तो यहाँ भी विदाउट रिपीटेशन है. विदाउट रिपीटेशन क्यों है? क्योंकि आई हैव ओनली 7 letters. Out of these 7 letters, if I used any one of the letter on one place, so that will be left, and I have again 7 6 7 5 4. This is the answer of part A, B और C. ये इनमें से किसका आंसर है? पार्ट ए का या पार्ट बी का या पार्ट सी का? जी जिशान सिद्दीकी. कोई बताएगा? ये पार्ट ए का आंसर है, रिजा ने बताया है. ये कहाँ है? रोहान कहाँ है? अजी क्यों नहीं आंसर दे रहा?
किसी का भी नहीं सही, ये सही आंसर है। ये आंसर है बेसिकली इसका, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये ABC से बाहर है। ये क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी ऑब्टेन, दैट इज नॉट लेबल्ड, ABC में ये नहीं आ रहा, दैट इज बिफोर दैट। तो इसका आंसर ये बन रहा है, एंड दैट कैन बी रेफर्ड टू एज 7 फैक्टोरियल। आर यू फेमिलियर विद द फैक्टोरियल नोटेशन? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 7 फैक्टोरियल। अब इसका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर जितना भी आएगा निकालिए। 7 फैक्टोरियल रोहन कितना आ रहा है? 5040 5040। ये क्या है 5040? इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये 5040 लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, समझ आई? लिस्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, इस आर्टिकल से एक वर्ड तो यही बना हुआ आर्टिकल है, लेकिन अगर मैंने इसमें से सिर्फ एक चेंज कर दिया, ARTICEL, ये चेंज कर दिया, E और L को इंटरचेंज कर दिया, तो एक नया वर्ड बन गया। तो अब 2 वर्ड हो गए। इस तरह कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं जो डिफरेंट होंगे प्रीवियस वन से, वो हैं 5040। इतने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं, ये इसके मीनिंग है। तो the huge number of list can be made of words by using these 7 letters, but in this list some words have meanings which are known as sensible words, and in the same list we have words which do not have any meaning, which are known as nonsense word. तो ये जो हम यहाँ पे लेटर्स बना रहे हैं, इनकी तरतीब चेंज करके, that is only the words which includes sensible words as well as nonsense words, सारी आ गए इसके अंदर ये। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है in which we can say that how many of them are sensible words, वो नहीं कर सकते, उसका कोई फार्मूला नहीं है। उसके लिए सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि लिस्ट पूरी बना लें, फिर डिक्शनरी में देखते जाएं, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। जो डिक्शनरी में आ जाए वर्ड्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेंसिबल वर्ड्स, और जो डिक्शनरी में ना आए, लेकिन इज ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क क्योंकि वी हैव 5040 वर्ड्स इन माय लिस्ट। Now come to the part A. In part A, one condition is there. The condition is consonants occupy odd places. And what are odd places? Odd places are basically one place number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 places. This is place number 1. This is place number 3. This is place number 5. This is place number 7. These are the odd places. And this is even place. This is even place. This is even place. Out of these 7 places, the condition is consonants on the odd places. Now you have to check which are the consonants. This is vowel. This is vowel. This is vowel. Out of these 7, 3 are vowels. Means the 4 are consonants. So out of these 4s, any one can be placed on the left place. So I have 4 options to fill this
odd place number 1. If I placed one consonant here, then I have remaining 3. If I have placed 2 consonants, one in the place number 1, second is on the place number 3, then I have 2 consonants remaining in my hand that I can place on place number 5. If one consonant is placed on place number 5, then I have only 1 consonant remaining in my hand to place at 7 position. So it is 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. But that is the situation of the odd places. But what about the places? What about the situation of even places? In even places, I have 3 vowels. So any one vowel can appear here. So this place we have a vowel, and I have vowel, 3 vowels I have in my list. So any one of these 3 vowels can be placed on the second place. I placed one vowel here, then in my hand there are 2 vowels remaining, and in my hand 1 vowel is remaining. So in this place we have to place vowel, here consonant, here consonant, here consonant, here consonant. To multiply all these, if you multiply all these, you will have the answer of this. जी बताइए कोई मुझे कैलकुलेट करके, रोहन, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4 3 3 3 144 आ रहा है. 144 is the answer. If anyone have any confusion in this solution, raise your hand. देखिए आप लोगों से जब कहा जाता है समझ नहीं आ रहा है आप पूछ लीजिए, तो आप पूछते भी नहीं हैं, और जब मैं पूछता हूँ फिर आप आंसर भी देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. Now coming to the part number B. This is the solution of part number A. In part number B, one restriction is given, that is R and T occupy the ANDs. ANDs के ऊपर R और T आएंगे. ANDs क्या हैं? ये AND है एक तो, left AND, ये एक और AND है, this is right AND. On the left AND, any one of these two can come, either R or T. If R come here, then you can place T here. If T came here, you can place R here. So we can have how many options I have to fill a place? Number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how many ways we have to fill the place number 1? How many ways we have to fill the place number 1? 2 ways. Why? Either R or T, any one of these 2 letters can be placed here. So I have 2 options to fill this place. I have only 1 option to fill the last place, because if R came here, then T will be here. If T is here, then R will be here. तो 2 में से एक जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ एक रिमेनिंग होगा. अच्छा, अब बाकी प्लेसेस पे क्या होगा? There is no conditions given for the remaining these 5 places. इन पे क्या होगा? कुछ नहीं कहा गया क्या होगा. तो any letter can come on any place. How many letters are remaining? 5 letters are remaining. So we can have to use
any one of the 5, 4, 3, 2, 1. That is the case. So we can write down this as 2 multiply by 5 factorial multiply by 1 is equal to how much? 240. Someone is saying 240. ये चेक कर लिया करें क्योंकि जो मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है मैं बस उसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ. So I have 240. So this is the solution of part B. Achha, now I am giving a chance to one candidate to write down on my screen and solve part number C. Okay. जी इस तरह ना लिखें, मैं एनोटेशन के थ्रू लिखवाऊंगा माज़ली. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई एम ओपनिंग द एनोटेशन फॉर स्टूडेंट. आई एम क्लियरिंग माय स्क्रीन and then you have to write down the solution on my screen as I was writing. Ji, you can annotate. I gave pen to you. You can write down on my screen the solution as I was typing. Ji, kariye. Mazali. Anyone else? Rimshamran. रुबाब ज़हरा. सर इसको मैं बताऊं कैसे सॉल्व करेंगे? जी बताइए. सर 7 प्लेसेस हैं तो लाइक हमारे पास 7 प्लेसेस हैं, टी एंड सी को साथ रखना है राइट. तो जी. 2 and 1 आएगा स्टार्टिंग में एंड इसके बाद टी एंड सी को छोड़ के क्योंकि हमारे पास 7 टोटल जो है क्या कहते हैं वर्ड्स हैं आर्टिकल के अंदर राइट. तो जब टी एंड सी साथ आएंगे तो हमारे पास 5 रिमेनिंग रह जाएंगे. तो इसको हम 5 4 3 2 1 ऐसे करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से आंसर 240 आएगा. यानी आप ये कह रही हैं कि ये मैं कर दूं टी एन सी एक साथ आ गई है, ठीक है, और फिर मैं यहाँ कर दूं 5 फैक्टोरियल. यही कह रही हैं. तो ये टी एन सी ये कितने मल्टीप्लाई करूं या सिर्फ 5 फैक्टोरियल रखूं? कुछ सही बता रही हैं. मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई. अच्छा, क्योंकि ये दो हैं टी एन सी इसलिए. जी कोई वेरीफाई करेगा आप में से कि ये सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं? खुशबा हसन. जी खुशबा हसन. यस सर. सही है ये? जी सर. गलत है ये. अनम यूसुफ. अच्छा किसी ने आंसर दिया है मुझे. माज़ली आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? माज़ली मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप बताइए. 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल होगा. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल. सर हम यहाँ पे दो वैल्यूज को 1 कंसीडर करेंगे. सही है. टी और सी को 1 कंसीडर करेंगे तो वो 6 फैक्टोरियल हो गया. और उन दोनों की भी आपस में 2 वेज हो सकते हैं, टी सी या सी टी. तो वो 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1440. वेल डन माज़ली. ये मैं इसमें यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ. देखिए इन्होंने बिल्कुल सही समझाया है. ये टी एन सी कम्स टुगेदर, लेकिन ये थोड़ी बताया टी एन सी ऑन द लेफ्ट प्लेस. ये जो इन्होंने अभी
किसी एक गर्ल स्टूडेंट ने ये किया था, वो भी कुछ सोच सही रही थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसमें कमी क्या कर दी थी, उन्होंने टी और सी को सिर्फ एक साथ रख दिया था वो लेफ्ट साइड पे। लेकिन ये थोड़ी कहा गया कि टी एंड सी कम टुगेदर। इनका आंसर ये वाला सही हो जाता अगर ये कह देता टी एंड सी कम टुगेदर ऑन लेफ्ट साइड, तो इसका आंसर ये सही हो जाता कि लेफ्ट साइड पर टी और सी आएगा। तो इन्होंने टी और सी रख तो दिया और उसको वो भी सही किया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, लेकिन उन्होंने एरर ये किया कि टी और सी को सिर्फ लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया। लेकिन वो ये कब कह रहा है कि टी और सी को लेफ्ट साइड पे रखें, वो ये कह रहा है टी और सी जहाँ भी आएंगे वो एक साथ आएंगे, तो टी और सी यहाँ भी आ सकता है। तो देखिए इसको मैं आसानी के लिए समझा रहा हूँ, ये टी और सी आ गया, और बाकी सब 5 फैक्टोरियल से आ गए। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो टी और सी लेफ्ट साइड पे आ गया। लेकिन ज़रूरी है कि टी और सी लेफ्ट साइड पे आएगा? ज़रूरी नहीं है। यहाँ कुछ भी आ गया, यहाँ टी और सी आ गया, यहाँ बाकी 4 आ गए, तो ये क्या होगा? ये होगा फिर 5, क्योंकि ये पांचों में से कोई सा एक आ जाएगा, 2 में से कोई एक आएगा तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 जो बचे हुए उनमें से कोई भी आ जाएगा तो 4 फैक्टोरियल। तो यूँ ये आपका इस तरह से टी और सी तीसरी जगह पे आ जाए, यहाँ आ जाए। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। टी और सी को, इसका मतलब है जब मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये बनेगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, दैट इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ माजली। कितना आंसर आ रहा है माजली? 1440 ये बता रहे हैं, तो 1440 आ रहा है। अच्छा, ये वाला सोल्यूशन से और ये जो मैं कर रहा था ना, इससे भी यही आंसर आएगा 144। देखें अब टी सी यहाँ आ गया तो ये थोड़ी चेंज होगा, फिर ये वही हो गया 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर टी सी और आगे बढ़ेगा तो फिर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और आखिर में टी सी जब इधर आएगा तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6, और जब तुम इन 6 को ऐड करोगे हर एक के आंसर को, तो आप देखना ये 1440 ही आएगा। ये 6 क्यों बनेंगे 6? टी सी लेफ्ट पे आ गया, टी सी सेकेंड प्लेस पे आ गया, टी सी 4th प्लेस पे आ गया, टी सी 5 प्लेस पे आ गया, और टी सी 6 प्लेस पे आ गया, आखिर में आ गया। तो इस तरह ये 6 बनेंगे और सबका आंसर सेम आ रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को जब तुम ऐड करोगे तो ये आएगा, या मैं ये कह लूँ 5 फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल को 6 दफ़ा जब तुम ऐड करोगे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और आप सबको पता है कि 5 फैक्टोरियल को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बन जाता है कितना? वो बन जाता है 6 फैक्टोरियल। तो इसको मैं फिर ये लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 1440। ठीक है जी। इफ एनीवन हैव क्वेरी देन रेज योर हैंड। जी, किसी को समझ नहीं आया है तो रेज योर हैंड प्लीज। लेकिन फिर बाद में ये ना कहिएगा ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। अभी आप लोग खामोश रहते हैं और फिर बाद में आप लोगों को जब चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं तो आप बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, मूविंग नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। जी रुदा, आपने पूछा है कि 144 कैसे आया, तो ये तो समझाया मैंने। देखें 144 आया कैसे, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये अगर आप सॉल्व करेंगी 1440 आएगा। क्यों आया ये?
6 फैक्टोरियल कैसे आया है? 6 फैक्टोरियल यूँ आया है, वो TC और फिर बाकी 5, TC यहाँ आ गया, बाकी 5 यहाँ आ गए। फिर ये हो सकता है ये लेफ्ट पे चला जाए, फिर TC आ जाए, 2 पे है, फिर बाकी 4, फिर 2 इधर चले जाएं, TC आ जाए और बाकी 3 एंड सो ऑन। इस तरह TC को आखिर तक लाना है, तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल इंटू। नाउ मूविंग नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कौन सॉल्व करेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम? सनाफ्तर। अच्छा अलिशवा, भी मैंने आपका आंसर हाइड कर लिया है। सनाफ्तर से मैंने कहा है कि सनाफ्तर इसको सॉल्व करें। जी सना। जी बोलिए भाई, जब आप बोलेंगे तो आवाज़ आएगी ना। देखिए इसमें एक चीज़ तो ये समझिए आप कि ये जो मैं कह रहा था ना, एक्शंस, आर एक्शंस, हर प्रॉब्लम में आप पहले एक्शंस देखिए कितने, जितने एक्शन हो ना उतनी जगह बना दीजिए, ठीक है? जितने एक्शन हो 180। उतनी आप क्या बना लीजिए, उतनी प्लेसेस बना लीजिए। अब ये सोचिए हर प्लेस पे कितने आ सकते हैं, इस पे कितने आ सकते हैं, इस पे कितने आ सकते हैं, एंड सो ऑन। फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तरीका है देखिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है? हर सवाल इसी तरीके से ही सॉल्व हो रहा है, हर सवाल का डिफरेंट मेथड नहीं है। अच्छा ये फातिमा ने आंसर दिया है 180। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, देखिए इसको। एक्शंस कितने हैं जी? एक्शन कितने हैं चैट में लिख के बताइए। वहाँ लिखा था ना आर एक्शंस, तो इस प्रॉब्लम में एक्शन कितने हैं? इसमें एक्शन है 3, क्योंकि मुझे 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो इसमें एक्शन है 3, तो मैं 3 जगह बना लूँगा, 1 2 3, ठीक है? अच्छा अब इसको फिल करना है, इन 3 जगहों को, 3 एक्शंस को। लिस्ट कितनी बड़ी है मेरे पास? 7 की लिस्ट है, 0 से लेके 6 तक मिलाऊंगा, 7 की लिस्ट है। अच्छा डिजिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस का मतलब है रिपीट नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताना है कितने बनेंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 5 बताया किसी ने मुझे। तो देखें इसको मतलब वही मेथड आएगा कि 7 तो हैं ये टोटल, बट आउट ऑफ दिस 7 0 कैन नॉट बी यूज्ड हियर, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये टोटल 7 थे, इनमें से 0 मैंने रोक के रखा हुआ था, इन 6 में से कोई एक यहाँ चला गया, तो अब यहाँ तो 5 बचे, लेकिन 0 को शामिल कर लिया तो फिर 6 हो गए, और फिर 5 हो गए। ये तो इसका आंसर है यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आंसर है। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है, हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स। अब देखें ये बी पार्ट है, इसे मैं क्लियर कर दूं जरा, ये बी पार्ट है।
हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स। तो अब वही बनाते हैं, देखिए फिर 1 2 3। 3 क्यों बना रहे हैं? बिकॉज 3 एक्शंस। अच्छा, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसमें इस जगह पे कोई ऑड डिजिट आना चाहिए। इस जगह पे ऑड डिजिट कौन कौन से हैं? ऑड डिजिट है 1 3 5, ये 3 तो हैं ऑड डिजिट। एंडिंग में 135 होगा। सही है, ये आंसर दिया है रिमशा ने, सही है। इससे पहले आंसर दिया था ये उशबा ने, ये भी सही है। तो देखें यहाँ पे इस जगह पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, तो ऑड नंबर। तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 3। इन 3 में से जिससे मैंने टिक लगाया हुआ है कोई एक यहाँ आएगा। अच्छा, विच एवर केम हेयर। तो अब दीज आर, हाउ मेनी दीज आर नाउ? दीज आर 6 remaining because 7 थे total. Out of these 7, 1 appeared here, so 6 are left in my hand. अच्छा, out of these 6, 1 is 0. Out of these 6, 1 is 0 because 0 थोड़ी यहाँ आया होगा। यहाँ पे या तो 1 आया होगा या 3 आया होगा या 5 आया होगा। 0 तो बाकी है ना, ये बस 0 यहाँ नहीं आ सकता। तो जो 6 बचे हुए थे उसमें 0 कम कर दिया मैंने। तो कितने बचे अब? 5। तो देखिए टोटल 7 थे, 7 में से एक इधर चला गया, 6 बचे। 6 में से 0 मैंने रोक लिया क्योंकि 0 के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेफ्ट पे 0 नहीं आ सकता। तो 0 भी रोक लिया अगर मैंने। तो अब मेरे पास 5 बचे, उन 5 में से कोई एक यहाँ आएगा। अब कितने बचे में? तो अब फिर मेरे पास 5 बचे हुए, क्योंकि टोटल 7 डिजिट थे। 7 में से एक यहाँ प्लेस कर दिया, 7 में से एक यहाँ प्लेस कर दिया, तो 7 में से 2 प्लेस हो गए। तो बचे हुए कितने हैं? तो कितना हो गया ये? 75। ठीक है, क्लियर हो गया बी पार्ट। अच्छा, अब इसमें जो सी पार्ट है वो सबसे टेक्निकल है, और जो सी पार्ट का आंसर देगा तो दैट विल बी अज्यूम्ड एज टैलेंटेड स्टूडेंट। जी मरियम, जी मरियम। सर 36। 36 आंसर आएगा इसका? कैसे निकाल लिया इतनी जल्दी? सर 330 है, तो हमारा सबसे पहला जो जगह है वहाँ पर 3, तो उससे ग्रेटर हमारे पास 4 5 6 3 डिजिट्स हैं। चलिए मैं लिखता जाता हूँ, रुक जाए आप। सही है, यहाँ पे ये आ सकता है 4 5 6, तो ये 3 सही है। अब ये 2 अब बचे। यहाँ सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, क्योंकि एक हमारे पास फर्स्ट में यूज हो गया है। अच्छा, तो टोटल थे कितने? 7 थे ना ये। 7 में से अभी तो एक ही लेकिन गया है। 30 से ग्रेटर चाहिए, तो हमारे पास 3 से बड़े नंबर 4 5 और 6 है, तो हमारे 4 पास यहाँ 5 पर 6। 3 पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो ये हो गए अब 3 यहाँ 2 आ 4 जाएंगे। 5 6। तो लेकिन इनमें से एक तो यहाँ जा चुका है ना। जी, तो यहाँ सेकंड 3 पोजीशन पे 2 4 आ जाएंगे। 5 6, 4 थे, सर एक चला गया। सही है, 3 आ गए। सही है। अब यहाँ क्या रह गया?
अब यहाँ 2 रह जाएगा सेकंड पे। 2 रह जाएगा। जी, कोई और बताएगा ये सही बताया है सोल्यूशन या गलत बताया है? सर 1 सर into सर 4 जी। फर्स्ट सर फर्स्ट पे 3 आएंगे, सेकंड पे 2 आएंगे और थर्ड पोजीशन पे 6 आएंगे। अच्छा, देखिए इसको जो जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें क्या डिफिकल्टी है मैं बताता हूँ आपको। माजली, आप बताना चाह रहे हैं तो बताएं। जी, माज अनम्यूट कर दिया है। चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखें इसको। इसमें देखिए करना ये है 330 से अबव, तो हम ये पहले निकाल लेते हैं 400 से अबव वाले, 400 से अबव वाले निकाल लेते हैं। तो ये जो 3 प्लेसेस हैं 400 एंड अबव काउंट कर रहा हूँ, फिर मैं 330 से लेकर 400 के बीच के काउंट करूँगा। 400 से अबव का मतलब ये 4, 5, 6, 3 में से कोई एक आ जाएगा, तो या तो 3 हो गए। ठीक है, अब इन 7 में से एक तो चला गया, तो कोई भी 6 और कोई भी 5, ये तो वो बने जिनको मैं कहूँगा 400 एंड अबव। कितने बने जरा मल्टीप्लाई करिएगा? 90 बने। ये 90 कौन से हैं? दीज आर द 90 विच कंप्राइज्ड अपॉन 400 एंड अबव, क्योंकि मैंने 330 एंड अबव लेना था, लेकिन अभी मैंने 330 से 400 तक के छोड़ दिए। कौन से ले लिए? अभी मैंने सिर्फ 400 से लेके लास्ट तक के ले लिए। अब मुझे वो काउंट करने पड़ेंगे 330 से 400 के इन बिटवीन कितने आएंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं इसके लिए। 3 प्लेसेस हैं, 1, 2, 3। इन 3 प्लेसेस से मैं कह रहा हूँ यहाँ भी 3, तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 लगाना है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ 3 आ नहीं सकता दोबारा, तो 330 से अबव लाना है, तो या तो 4 या 5 या 6, तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि 3 दोबारा तो 3 आ ही नहीं सकता, और मुझे 330 से अगर बड़ा चाहिए तो या तो 340 या 350 या 360। तो यहाँ पे 340 अगर आ गया तो 1, 350 आ गया तो 2, और 360 आ गया तो 3, और ये 2। ये आपके हुए 6, और 9 और 6 को अगर मैं मिला लूं, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने लास्ट गलत कर दिया, सॉरी। ये जो लास्ट है मैंने लिखा है ना, ये गलत कर दिया। ये 3, यहाँ क्या आ गया? यहाँ गया 4, 5, 6, 3। अब बाद में क्या बचा है? वो बचा है, टोटल थे 7 डिजिट्स में से 2 चले गए, तो बचे कितने? 5। तो ये जो आप ये 6 नहीं है, ये आपका 15 है। तो ये है 90 और ये है 50, तो 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105। ये आंसर है लास्ट पार्ट का। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए। और ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन यही है इस लिस्ट में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए, मुझसे ये कहा जा रहा था
कि मैं 330 से बड़े नंबर्स बनाऊं। तो मैंने किया क्या, मैंने 400 एंड अबव ये पहले काउंट कर लिए। 400 and above I have counted this। 400 and above में कैसे आएगा, या तो यहाँ 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। यहाँ 4, 5 और 6, तो 3 पॉसिबिलिटीज आई हैव टू फिल दिस प्लेस। अच्छा, अब टोटल 7 थे, ये एक चला गया, तो 6 और 5, तो ये 90 हो गए थे। लेकिन ये कौन से नंबर्स हैं, ये हैं 400 एंड अबव के। मुझे कितने निकालने थे, 330 एंड अबव। तो इसका अंदर मैंने 400 अबव अलग निकाल लिया, 330 से 400 के अलग कैलकुलेट कर। तो 330 से 400 के क्या बनेंगे, तो यहाँ तो अच्छा 400 खुद तो बन ही नहीं सकता, तो जो लास्ट बनेगा ना वो 356 बनेगा। तो मैंने यहाँ एक कर दिया ये। अच्छा, यहाँ 330 से अबव चाहिए, तो 30 तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 यहाँ आ गया, 3 दोबारा नहीं आ सकता। तो 4, 5, 6, या तो यहाँ 40 या 50 या 60, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। एंड टोटल 7 थे, आउट ऑफ दी 7 2 चले गए, 5 बचे, तो ये 15 बने। तो ये 90 बने जो 400 से अबव हैं, ये 15 बने, मिला लिए दोनों को तो 105। ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। 234 क्यों नहीं ले सकते, किस जगह पे बात कर रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया। जी, अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, this will be, you can do it yourself, you can do it yourself। 8 and 9, slide number 8, slide number 9, these are the 2 parts। जो नॉलेज मैंने अब तक के इन क्वेश्चंस में दी है, कितने मैंने कराए हैं आपको देखें, 1, 2, 3, 4, ये 4 करा दिया आपको मैंने। अच्छा, इन 4 को देखकर ये 5, 6 ये खुद करिएगा। मोर और लेस वही नॉलेज है जो कि उन 4 में थी, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद फैक्टोरियल। अगर मैं कहता हूँ n फैक्टोरियल, तो हम ये लिखते हैं इसको, लेकिन तुमने इंटर में पढ़ा होगा शायद, यूँ भी लिखते हैं n फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे लिखूंगा कि हमारी बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के मीनिंग क्या होते हैं? n फैक्टोरियल के मीनिंग होते हैं n फिर एक कम, n माइनस 1, फिर एक और कम, n माइनस 2, इन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, और फिर क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। अब आसान लफ्ज़ों में कहूँगा 4 फैक्टोरियल है 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 मत लगा देना, क्योंकि 4 माइनस 4 से 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ये तो हो गया 4, 3, 2, 1, ये 4,
So all of you are familiar with factorial. Okay. Moving next. Factorial k factorial is k minus 1, k minus 2, 2 into 1. Or 0 factorial, be remember 0 factorial is always be equal to 1. 0 factorial is always be 1. Can anyone of you give me a reason why 0 factorial is equal to 1? Raise your hand. Or give your answer in chat box. अब देखें आ रही है स्क्रीन आपके पास सालेहा ओके 0 फैक्टोरियल इज 1 का देखें सोल्यूशन ये है हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 तो मैं 0 फैक्टोरियल को देखेंगे कैसे 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल का मैं लिखता हूँ 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अच्छा होल्ड करें जरा एक कॉल आ रही है मैं कॉल ले लूँ